Hello students and welcome to the solutions of biology class 10 PSET examination. So the first question number 31, ये एंडोक्रिन सिस्टम से रिलेटेड हो रहा है जो हार्मोन्स वाला हमारा सिस्टम है. टेस्टिस प्रोड्यूस डैश हार्मोन. सो टेस्टिस दैट इज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरली रिलेटेड टू ह्यूमन मेल्स, तो दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन which is testosterone. Therefore, question number 31, the correct answer should be option B, testosterone. Now, question number 32, genetics से आ रहा है. Which genotype represents a true dihybrid condition? So, in a dihybrid condition, in a true dihybrid condition, what should happen? We should see the presence of two genes there, right? तो अगर दो जीन हो रहे, हर एक जीन का तुम्हारा यहाँ पे दो alleles आ रहे हैं. Let's say मेरे पास 4 पोजीशन है, okay? Then what I have to keep in mind is dihybrid, right? इस कंडीशन के लिए इसमें दोनों जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में आने चाहिए. तो यहाँ पे T एंड R जीन्स को लिया गया है. तो पहला जीन अगर T है हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल T स्मॉल t, दूसरा जीन अगर R है हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल R स्मॉल r. तो अगर ये दोनों पोजीशंस इस तरीके से हेट्रोजाइगस हो रहा है तब हम इसको मानेंगे एक ट्रू डाई हाइब्रिड. सो here question number 32, the correct answer should be option C. Now question number 33, what is the energy currency for most cellular processes? तो एक हम लोग लाइन पढ़ते हैं mitochondria is the powerhouse of the cell. Another related line जो हम पढ़ते हैं that is ATP is the energy currency of the cell. So ATP, adenosine triphosphate. Therefore question number 33, the correct answer should be option A. Now question number 34, which of the following statements are incorrect? तो when you look at the statements, this is from control and coordination, plant hormones से related हो रहा है. So auxin is synthesized at shoot tip. This is correct. Due to auxin, plant appears to bend towards dark. ऑक्सिन के कारण जो फोटोट्रोपिज्म का फिनोमिनन होता है, तो फोटोट्रोपिज्म में व्हाट वी आर नोटिसिंग इज प्लांट इज बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट. तो इसमें बोल रहे टूवर्ड्स डार्क. हमसे इनकरेक्ट कंडीशन पूछा है. लेट्स क्रॉस चेक द अदर टू. जिबरलिन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम. दिस इज करेक्ट. वो स्टेम के इंटरनोड के इलोंगेशन में हेल्प करा रहा है. सेल डिवीजन इज प्रमोटेड बाय साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन का जो नाम ही रखा गया है इट्स बिकॉज इट प्रमोट्स साइटोकाइनेसिस which is nothing but cell division. तो ये भी करेक्ट है. Therefore, incorrect statement इसमें कौन है? B. So question number 34, the answer should be option B. Now, question number 35, malaria is caused by A. तो मलेरिया का जो causal organism हो रहा है that is plasmodium. Generally दो common species जो हम देखते हैं Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum. So what is Plasmodium? Plasmodium is nothing but a protozoan. So malaria is considered to be a protozoan caused disease. Hence question number 35, the correct answer should be option A. Now question number 36, muscles contain special protein called dash that helps in muscle movement. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं मसल मूवमेंट की अगर बात हो रही है, सो इफ यू लुक एट दिस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मसल्स आर कंसिडर्ड टू बी कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर. दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. ये जो प्रॉपर्टी हो रही है दैट इज वेरी क्रूशियल विच अलाउज मसल्स टू हेल्प इन मूवमेंट. एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी एग्जैक्टली हमारे मसल्स में क्या प्रेजेंट है? दो प्रेजेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन. So question number 36, the correct answer should be option D. Now question number 37, which one of the following macronutrient is not supplied by soil? तो इसमें अगर तुम first 3 options देखो, phosphorus, calcium, sulfur, all 3 are considered to be macronutrients because they are required in a very large quantity in the plant body. लेकिन ये तीनों जो elements यहाँ पे हो रहे हैं तीनों ही आयन फॉर्म्स में सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं. सो फॉस्फेट आयंस, कैल्शियम आयंस, सल्फेट आयंस, इस तरीके से. बट जो फोर्थ ऑप्शन हो रहा है कार्बन, नाउ कार्बन हम लोग बोलते हैं कि वी आर ऑल कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स. तो इसका मतलब कार्बन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. बट प्लांट बॉडीज में जो कार्बन आ रहा है वो सॉइल से किसी आयन फॉर्म में नहीं आ रहा है. तो प्लांट में कार्बन कहाँ से आ रहा है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से आ रहा है. सो नॉट फ्रॉम द लिथोस्फेयर. So इसमें पूछा गया है which is not supplied by soil. Therefore question number 37, the correct answer should be option D.
Now question number 38. In human digestive system, which organ secretes enzyme pepsin? So pepsin, that is related with the digestion of proteins, and pepsin का जो secretion हो रहा है, that is done by the stomach. So question number 38, the correct answer should be option B. Now question 39. In which of the following process pyruvate is converted into alcohol and carbon dioxide? तो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन में जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट. अब ये पायरुवेट आगे कैसे यूटिलाइज हो रहा है वो अलग अलग होता है विथ रिस्पेक्ट टू एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो पायरुवेट से जो अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, टू बी मोर प्रिसाइज दैट इज अल्कोहल फर्मेंटेशन. तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन बी, फर्मेंटेशन. Now question number 40. Black bears have thick fur that traps air. How does this air insulate the bear in winter? So black bears के केस में they have very thick covering of fur, and हम जानते हैं कि ये जो fur है उनको winter में protection provide कर रहा है from the cold conditions. The question is how exactly is it doing it? तो यहाँ पे तो first line में बोल दिया गया है कि उनका जो thick fur है that traps air. नाउ ये एयर जो ट्रैप हो रहा है इसकी वजह से विंटर में सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो जब बॉडी सरफेस के ऊपर फर है और उस फर में अगर एयर ट्रैप हो जाता है तो वो ट्रैप्ड एयर क्या कर रहा है, बॉडी हीट को जल्दी जल्दी बाहर जाने से रोक रहा है. तो जितना जल्दी मैं अपना बॉडी हीट लूज़ करूँगी टू द एनवायरनमेंट उतना जल्दी मुझे कोल्ड फील होगा. लेकिन अगर मैं उस बॉडी हीट का जो लॉस है अगर मैं उसको स्टॉप कर सकूँ या फिर स्लो डाउन कर सकूँ देन व्हाट विल हैपन, आई विल बी अडेप्टेड टू विंटर कंडीशंस. सो इन केस ऑफ ब्लैक बेयर्स व्हाट इज हैपनिंग, द एयर इट रिड्यूसेस थर्मल या फिर आई कैन से हीट एनर्जी फ्लो टू द एनवायरनमेंट, उसको रोक रहा है या स्लो डाउन कर रहा है. Therefore question number 40, the correct answer should be option A. Now question number 41, which of the following plants have unisexual flowers? तो यहाँ पे अगर तुम सबसे odd one out देखो, जब भी हम लोग bisexual flower पढ़ते हैं the most common example we use is hibiscus. तो going by that logic option B and C यहाँ पे क्या हो रहा है, delete हो रहा है. मस्टर्ड, ये जो प्लांट हो रहा है मस्टर्ड पूरा जो फैमिली है इसके जो फ्लावर्स हो रहा है अगेन दे आर बाइसेक्सुअल इन नेचर. तो इसका मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वाला प्लांट हमारे पास कौन हो रहा है, पपाया एंड वाटरमेलन. सो क्वेश्चन नंबर 41, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 42 इकोलॉजी का क्वेश्चन है. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रॉफिक लेवल? तो किसी भी फूड चेन में जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो रहा है तो सोलर एनर्जी को यूज़ करना, उसको एक यूजेबल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये काम जो करेगा तो टेक्निकली इकोसिस्टम में उसने क्या किया है, एनर्जी प्रोड्यूस किया है. सो वी कॉल देम एज प्रोड्यूसर्स. सो दैट लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. तो फर्स्ट लेवल पे आया प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी प्रोड्यूस किया उसको नेक्स्ट लेवल पे कंज्यूम किया जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ए कंज्यूमर. So that's the first level, primary consumer, followed by a secondary consumer, and finally what we have is a tertiary consumer. So question number 42, the correct answer should be option C. Now question number 43 में जो human teeth का यहाँ पे arrangement हो रहा है, right? So there are 4 types of teeth that we know of. What we have, we start first with the incisor, then we have canine, premolar, and last में जो आ रहा है वो है molar. तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो दिखाया गया है दिस वन, ओके, दिस इज द इंसिसर. तो यहाँ पे W जो लेबलिंग हो रहा है दे आर द इंसिसर्स. उसके बाद उसके नेक्स्ट ये वाला जो टीथ हो रहा है X जो लेबल किया गया है दे आर द केनाइन टीथ. उसके नेक्स्ट ये वाले जो टीथ हो रहा है विच हैज़ बीन लेबल्ड एज Y, दीज आर द प्रीमोलर. एंड फाइनली जो लास्ट के टीथ यहाँ पे लेबल हो रहा है विच इज़ लेबल्ड एज Z, दैट इज गोइंग टू बी मोलर. तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे इसको मैचअप करें X केनाइन, W इंसिसर, Z मोलर एंड Y प्रीमोलर. सो क्वेश्चन नंबर 43, द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन B. नाउ क्वेश्चन नंबर 44,
Which instrument is used in measuring blood pressure? ये जो हम लोग पढ़ते हैं high blood pressure, low blood pressure, right? So ये measure किस instrument से किया जाता है? हम तो day to day life में simply बोल देते हैं BP machine, right? But the technical name for that particular machine is sphygmomanometer. So question number 44, the correct answer should be option A. Now the last question, movement of food through esophagus is mainly due to. So once we masticate the food in the buccal cavity and then जब हम उसको swallow करते हैं तो esophagus के through stomach तक जो तुम्हारा food का movement हो रहा है, that is because of a very rhythmic manner of contraction and relaxation of the esophagus. तो ये जो contraction relaxation हो रही है, जो movement हो रहा है जिसके through food भी move कर पा रहा है, that is called to be peristaltic movement or we call it to be peristalsis. So question number 45, the correct answer should be option B. So I hope this discussion cleared all of your doubts and I look forward to see you in the classrooms of PNC Academy. Thank you.